Hello students, today we will see very important topic, that is probability distribution from class 12. And as far as state board is concerned, weightage of this chapter for commerce students class 12 is 11 marks. 11 marks is the weightage for this chapter. Maximum weightage दिया गया है इस chapter को. And concepts जो हैं इस chapter में, they are very important concepts related with probability. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है आपको थोड़ा बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, जो कि हम 10th या 11th स्टैंडर्ड में करते हैं. सो बाय कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास 12. अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है. रैंडम वेरिएबल, जैसे कि इसके नाम में ही आप देख लोगे तो देयर आर टू वर्ड्स, एक तो है रैंडम एंड दूसरा है वेरिएबल. वेरिएबल सिंपली जो आज तक हमने वेरिएबल्स देखे हैं विच वेरीज एंड इट टेक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो यहाँ भी ये जो वेरिएबल है इट वेरीज एंड इट टेक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, बट वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो आती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से. तो हमको सबको पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमने देखा है अपने 10th और 11th स्टैंडर्ड में. एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन वन और मोर देन वन आउटकम इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है. सो इट इज डिफाइंड एज, इट इज अ वेरिएबल विच टेक्स values from the outcomes of the random experiment. So this is the definition, variable and it takes values from the outcomes of the random experiment. and जो notation यहाँ पर use किया जाता है, notation to represent any random variable is capital X, capital Y, capital Z. ये notation use की जाती है. So अब इसको हम समझेंगे एक example के help से. Let's take one example. Suppose अब देखिए जो random variable है वो depend करता है random experiment के outcomes पर. तो सबसे पहले हम एक random experiment consider करते हैं. Suppose random experiment जो है it is 3 coins are tossed. 3 coins are tossed simultaneously. Okay. So whenever 3 coins are tossed, set of outcomes, जिसको कि हम sample space कहते हैं, it is represented by capital S. It is a set of outcomes. जहां पर देखिए अभी 3 coins अगर toss हुए हैं तो outcomes हो सकती हैं either all 3 are heads या फिर 2 heads and 1 tail. तो there are different combinations of 2 heads and 1 tail. First can be H H T, उसके बाद हो सकता है H T H, then T H H. These are the outcomes with 2 heads and 1 tail. Then हो सकता है outcomes with 1 head and 2 tails. मतलब ये कुछ इस तरह से हो सकता है H T T, T H T, T TH, and then there is a possible outcome which contains all 3 tails, मतलब no head. So these are the possible outcomes. So now random variable, suppose हमने define किया है random variable which is represented by X is defined as, suppose, number of tails. इस तरह से random variable define हुआ है. Either it can, in case of coin जो है, only there are 2 ways of defining a random variable, either number of heads or number of tails in each outcome. So as you know that this random variable will take values from the outcomes of the random experiment. तो यहाँ पर there are 8 outcomes. तो ये 8 outcomes में से वो values लेने वाला है. तो देखिए वो values हम कैसे लिखते हैं. Now number of tails. Let's take first outcome. अब यहाँ पर all 3 heads are there, तो number of tails मतलब there is no tail means 0 tail. Let's go to next outcome. Here there is 1 tail. Next 1 tail and 1 tail. These 3 outcomes में there is 1 tail. Next 2 tails
again 2, again 2, like this. And last outcome में there are 3 tails. So if you will observe the outcomes and number of tails in each outcome, it is taking values 0. Now 1 is repeated 3 times, but whenever we write values of random variable, values are not repeated. We will write only once. So 0, 1, 2, 3. So these are the values taken by random variable. So this is how random variable is defined, and this is one of the example for the values of the random variable. Now we will see types of random variable. So to explain types of random variable, there are 2 sets of examples written in front of you. First of all, let's focus on first set of example. जैसे कि first example in first set is number of children in a family. So number of children in a family. So if we want to find कि what all values it will take, तो वो किस तरह से हो सकता है कि either there is no child in a family. So no child मतलब this random variable will take value 0. फिर हो सकता है there is 1 child in a family, or 2 children in a family, or 3, like this. So see, these are the values which this random variable, this is whatever is defined, number of children in a family will take. Okay, now let's take next example, that is number of heads in tossing a coin 10 times. मतलब अगर एक coin को 10 times अगर हमने toss किया हो तो रैंडम वेरिएबल किस तरह की वैल्यूज लेगा? तो रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड्स. तो फर्स्ट आउटकम में किस तरह से हो सकता है कि सपोज ऑल 10 आर हेड्स, ऐसा हो सकता है, या फिर इट स्टार्ट्स विद देयर इज नो हेड, मतलब ऑल टेल्स वाली आउटकम. सो 0 हेड हो सकता है, या फिर ऑल दोज आउटकम्स विथ 1 हेड, विथ 2 हेड्स. तो इस तरह से ये जो वैल्यूज है, दैट इज नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग कॉइन 10 टाइम्स, ये कहां तक जा सकती है? ये जा सकती है सिर्फ 10 तक, because it is tossed 10 times. So this is second example. Now third example है number of stars in the sky. तो number of stars in the sky, it can be either, मतलब जिस तरह से हम देखते हैं तो हो सकता है 0, 1, 2, like this till infinity, मतलब this is infinite set. So this is one set जहां पर आप observe करोगे तो आप देखोगे कि this is a set which is countable. ये countable है, यहाँ पर हम जो है वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं. वी आर गेटिंग वैल्यूज बाय काउंटिंग. सो पहली चीज जो हमने ऑब्जर्व की कि वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, मतलब काउंटिंग करके हमको वैल्यूज मिलती है. ये पहली चीज है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग विच वी आर ऑब्जर्विंग इज, देखिए कई बार क्या होता है, ये नेगेटिव वैल्यूज अगर जिस तरह से वो डिफाइन किया है तो वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती है. तो जब वो नेगेटिव वैल्यू लेगी तो वो दैट होल थिंग विल फॉर्म सेट ऑफ इंटीजर्स. तो नेक्स्ट हो सकता है कि जो ये वेरिएबल है इट इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से ले सकता है. तो ये सेट ऑफ एग्जाम्पल में हमने ये चीजें ऑब्जर्व करी कि वैल्यूज आर ऑब्टेन बाय काउंटिंग and it forms the subset of set of integers. set of integers का subset है. तो जब इस तरह से random variable होता है तो इस तरह से random variable को हम बोलते हैं discrete random variable. इसे कहते हैं discrete random variable. जैसा कि इसका नाम है discrete, मतलब something which is distinct, मतलब which can be counted. So first type of random variable जो है वो है हमारा discrete random variable. अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब है वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग एंड दोज वैल्यूज आर फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स. तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स, जैसे कि एज ऑफ अ पर्सन. नाउ एज ऑफ अ पर्सन जिस तरह से हम उसको देखते हैं, तो एज ऑफ अ पर्सन क्या हो सकता है? इट कैन बी सपोज 25 years, राइट? 25 years. उसके बाद जरूरी नहीं है कि वो 26 years ही होगा, वो हो सकता है 25.1, मतलब 25 years 1 month. देन वो हो सकता है 25 years 3 months, like this. मतलब these values, ये जो values ले रहा है यहाँ पर random variable, these are not obtained by counting. ये counting से नहीं हमको मिलती है, मतलब you can't count age of a person, but
we can say we can measure it, like age can be measured, so right, so 25 मतलब ये जो वैल्यूज है ये डेसिमल में आती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन आवर्स. तो इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ किस तरह से हो सकती है, इट डिपेंड्स, राइट, इट कैन बी 10 आवर्स. अब 10 आवर्स के बाद जरूरी नहीं है कि वो 11 आवर्स होगा, इट कैन बी 10 hours few minutes, so suppose 10.2, 10.3 like this. So again ये जो लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब है ये भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं करते हैं. सिमिलरली स्पीड ऑफ अ व्हीकल, स्पीड ऑफ अ व्हीकल कैन नॉट बी काउंटेड, एंड ये जो वैल्यू है ये भी डेसिमल्स में आ सकती है. तो यहां पर जो हम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज वैल्यूज आर obtain by measuring. जैसे कि अभी यहां पर एज का एक एग्जांपल है, एज की जगह सपोज अगर हाइट हो, वेट हो, दैट कैन बी मेजर्ड. सो वैल्यूज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, इसका नाम मैं बताऊंगी, वैल्यूज आर obtained by measuring. एंड नेक्स्ट थिंग इज जो ये रैंडम वेरिएबल यहां पर है, ये वाला टाइप, दैट इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम सम इंटरवल. एक जो रियल लाइन के इंटरवल्स होते हैं, पार्ट ऑफ रियल लाइन को बोला जाता है इंटरवल. ये एक इंटरवल में होता है, तो सपोज a, b. तो इस तरह से जब रैंडम वेरिएबल वैल्यूज लेता है, उस रैंडम वेरिएबल को बोला जाता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. What it is called? It is called continuous random variable. So there are two types of random variables: discrete random variables and continuous random variable. Discrete random variable में values are obtained by counting. In continuous random variable, values are obtained by measuring. This is a big difference between them, and this is the difference which you need to understand कि यहाँ पर हमको counting से मिलती है and continuous में हमको measuring से मिलती है. And second important difference is that discrete random variable की जो values होती है वो that forms the subset of set of integers, वो set of integer में से आती हैं. And continuous random variable है which is not countable, it can be finite, infinite. This is always infinite. This continuous random variable का values are always infinite, whereas discrete में they can be finite or infinite, ये दोनों हो सकती है. So continuous random variable की जो values है वो interval में से आती है, real line में से. So like this there are two types of random variables. Now after knowing random variable and types of random variable, now we are ready to know the definition of probability distribution, जो कि हमारा actual topic है. So probability distribution जो है, it is simply a listing of values of random variable. मतलब random variable की values की list बनाना. मतलब suppose random variable x है, वो जो है वो values ले रहा है कुछ इस तरह से x1, x2 like this till xn. So listing of values of random variable and corresponding probabilities. Corresponding probabilities मतलब p of x. So corresponding to x1, this is in general, so p of x1 is the probability. Corresponding to x2, p of x2, like this till p of xn. So इस तरह से जब हम random variable की values and corresponding probabilities लिखते हैं तो उसको बोला जाता है probability distribution. इसको बोला जाता है probability distribution. तो simple सी चीज है, writing or listing the values of random variable and corresponding probabilities is called probability distribution. And इस तरह से जो है वो हम किस random variable की वैल्यूज लिस्ट कर सकते हैं, वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं. तो लिस्टिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल वेरी सिंपल वन आई विल टेक. सपोज आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो यहां पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं. 2 कॉइन्स आर टॉस्ड,
तो आपको पता है कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड तो सैंपल स्पेस आपका जो है वो 4 आउटकम्स लेगा, HH, HT, TH एंड TT। एंड जैसा कि मैंने बताया है, इन केस ऑफ कॉइन सिर्फ 2 तरीके होते हैं रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने के। सो लेट्स टेक नंबर ऑफ टेल्स, और दूसरा हो सकता है नंबर ऑफ हेड्स। सो x विल टेक वैल्यूज, नंबर ऑफ टेल्स तो यहाँ पर है नो टेल मतलब 0, हियर इट इज 1 1 एंड हियर इट इज 2। सो x विल टेक वैल्यू 0 1 2। तो यहाँ तक है कि वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब x वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लाइक दिस। अब देखिए x जो है वो वैल्यूज ले रहा है 0, फिर 1 एंड फिर 2। So these are the values taken by random variable. अब we will write corresponding probabilities. Now corresponding to 0 मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो corresponding to that there is only one outcome. So probability is 1 upon total number of outcomes. There are 4 outcomes. So probability is 1 by 4. Corresponding to 1 there are 2 outcomes. So probability is 2 upon 4. And corresponding to 2 again there is only one outcome, so probability is 1 upon 4. So this is how we write probability distribution. अब for discrete random variable ही we will see कि this probability distribution है जो है उसको हम PMF that is probability mass function कब बोलेंगे? Probability mass function. So corresponding to discrete random variable जहां पर आता है वहां पे जो corresponding probability distribution है associated with that there is a function p of x, उसको हम PMF बोलेंगे। उसके लिए there are 2 conditions, 2 conditions required है। पहली condition है कि each probability should be between 0 and 1। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कोई भी probability नेगेटिव नहीं है और 1 से ज्यादा भी नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कि ईच प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 एंड 1 फॉर ऑल x कोई भी वैल्यूज ले तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 एंड 1 के बीच में आनी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज कि समेशन मीन्स इफ यू विल एड ऑल द प्रोबेबिलिटीज तो उसका जो एडिशन है वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे इजीली यू कैन चेक कि एडिशन ऑफ दीज 3 वैल्यूज, दीज 3 प्रोबेबिलिटीज इज 1 1 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 4 4 बाय 4 इज 1। तो अगर ये 2 कंडीशन कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। Now our total focus will be on discrete random variable and corresponding topics और जो भी उसके साथ topics related है। तो discrete random variable के साथ जो है वो पहला सब topic है PMF का, probability mass function, and ये 2 conditions आप लोगों को याद रखनी होती है for PMF। So now students we know PMF that is probability mass function। probability mass function जो कि discrete random variable के लिए define किया है। तो वो probability mass function कब होता है? जब वो 2 condition satisfy होंगी, very important one, that is each probability is between 0 and 1 and summation of all the probabilities is equal to 1। Now corresponding to this PMF probability mass function there we defined a CDF, इसको कहते हैं CDF which is उसका फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो वो देखेंगे कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो CDF का नोटेशन इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड इट इज सिंपली समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विच आर लेस देन और इक्वल टू दिस एक्स। तो देखिए ये जो है ये थियोरी पार्ट जो है वो हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है, बट इफ वी विल अंडरस्टैंड दिस वन विथ द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड CDF दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर दिस गिवन एग्जांपल। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 वैल्यूज ले रहा है एंड दीज आर दी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज।
तो एफ ऑफ एक्स दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब हमको फाइंड आउट करना है, फंक्शन फाइंड आउट करना मतलब फंक्शन की वैल्यूज एट 0 1 2 3 हमको फाइंड आउट करनी है, तो इस तरह से हम एक रो ऐड कर देते हैं इसमें। अब देखिए एफ ऑफ मतलब फॉर जीरो इट विल बी सिंपली पी ऑफ जीरो। जिस तरह से हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम निकालते हैं वाइल सॉल्विंग क्वार्टाइल ऑल दीज प्रॉब्लम्स, उसी तरह से हम ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी निकालते हैं। तो पहली वैल्यू 1/8 एज इट इज। नेक्स्ट वैल्यू दैट इज एफ ऑफ 1 के लिए वी एड पी ऑफ 0 एंड पी ऑफ 1, सो वो हो जाएगा आपका 4/8। एफ ऑफ 2 के लिए वी एड P of 0, P of 1, P of 2, मतलब इन शॉर्ट आप इन दो वैल्यूज को ऐड कर दो, तो दैट विल गिव यू 7/8। नाउ फॉर f of 3 वी ऐड P of 0, P of 1, P of 2, P of 3, मतलब 1/8 plus 7/8 which is 8/8. So this is how we find cumulative distribution function. मतलब अगर आपको पूछा जाए कि f of 2 क्या होगा, दिस f of 2 जहां पे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट विल बी सिंपली और एडिशन ऑफ ऑल दोज प्रोबेबिलिटीज विच आर फॉर विच रैंडम वेरिएबल का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब p of 0 प्लस p of 1 प्लस p of 2। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। नाउ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बाद जो पीएमएफ से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए अदर टर्म्स हो सकते हैं मीन या एवरेज। तो अगर आपको मीन, एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू तीनों में से कोई भी एक टर्म होगा वो पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपली समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। देन उसके बाद का कॉन्सेप्ट है वेरिएंस ऑफ एक्स। Variance of x is simply e of x square minus e of x whole square. अब जो ये e of x है ये तो आपको यहां से मिल जाएगा because it is just square of e of x, but this e of x square को find out करने के लिए formula is summation। देखिए ये e of x है तो यहाँ पर x p x है, तो e of x square के लिए ये x square p of x होता है। So this is how we find expected value and variance. So corresponding to discrete random variable, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज तो discrete random variable जो है वो values लेता है from set of integers which are countable and that set can be finite or infinite, वो हो सकता है। and values जो है वो हमें count करके मिलती है, वो होता है discrete random variable। Now corresponding to discrete random variable प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को लिखना एक टेबुलर फॉर्म में, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब कहलाता है, जब वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। ये पहली है प्रोबेबिलिटीज बिटवीन 0 and 1 एंड एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो ये हो गया पीएमएफ। Now corresponding to PMF there is a function which is called CDF, cumulative distribution function। तो cumulative distribution function find out करने का ये formula है and this is how we find cumulative distribution function। ये example से आपको I hope अच्छे से समझ आया होगा। And after cumulative distribution function there are two more concepts, expected value and variance of x। So this is how formula are given and अगर आपको इतनी चीजों का पता है तो we can start with problems which are associated with this concept। Hello students, today we will see some problems, some questions from the topic probability distribution and इसका जो basic concept है that is random variable, its types में जहाँ पर discrete and continuous होता है, then discrete से related concepts, probability distribution से related topic PMF which is probability mass function, cumulative distribution function that is CDF, expected value of discrete random variable and variance
ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो प्लीज रेफर दैट एंड देन refer this video, that is problems for probability distribution based on discrete random variable. So देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है find the probability distribution. हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिस्टिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिखना और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखना, उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वी वांट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर, तो ऑफ द के बाद जो भी लिखा है वो है आपका रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एंड रैंडम वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। सो रैंडम वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट होता है बाय एक्स। सो यहाँ पर किस तरह से डिफाइन किया है, एक्स इज नंबर ऑफ सक्सेसेस in 2 tosses of a die, right? Like this x is defined. अब number of successes and success is defined here. Success क्या है? Success is defined as, success is getting a number greater than 4. So सक्सेस इस तरह से डिफाइन की है, राइट? अब देखिए यहाँ पर जो है इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी। सबसे पहले आपको मिल जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको पता होगा तब हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, योर random experiment is, see, 2 tosses of a die. So a die is tossed 2 times. die को जब 2 times toss किया गया, that is random experiment. तो हम सबको पता है कि जो sample space है, whenever a die is tossed 2 times or 2 dies are tossed, तो sample space S जो है उसमें होते हैं 36 आउटकम्स। 36 आउटकम्स किस तरह से होते हैं, 1,1, 1,2, like this. See, I will write all the outcomes because these outcomes will make it very easy to understand कि ये किस तरह से रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आई हैं। तो ये होगा 1,6 तक, सिमिलरली 2,1, like this. So these are the outcomes of the random experiment when die is tossed 2 times, right? So ये outcomes में से जो है वो हमको ये random variable की values मिलेंगी, and random variable की values मिलने के बाद for each value we will be finding corresponding probability. Okay? So now first of all हमको पता होना चाहिए कि ये random variable कौन कौन सी values लेगा, and these are the outcomes of random experiment. So random variable की values x, let's see what are the values. देखिए अब it is number of successes, right? Number of successes in 2 tosses of a die, जहां पर success क्या define की है, is getting a number greater than 4, मतलब 4 से greater number 5 और 6 मिलना is the success. So let us observe the first outcome 1,1, right? अब देखिए जब फर्स्ट टाइम डाई रोल हुई तो हमें 1 मिला, विच इज नॉट ग्रेटर देन 4, सो दिस इज नॉट अ सक्सेस. नंबर ऑफ सक्सेसेस विल बी हियर, फॉर दिस इट इज नो सक्सेस, एंड फॉर सेकेंड आउटकम ऑल्सो इट इज नो सक्सेस. तो नंबर ऑफ सक्सेसेस कैन बी 0 फॉर फर्स्ट आउटकम, सेकेंड, थर्ड, नंबर ऑफ सक्सेसेस इज 0. तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो x ले रहा है, वो 0 है. ऐसी बहुत सारी आउटकम्स हो सकती है वेयर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज 0, मतलब ऐसी बहुत सारी आउटकम्स है यहाँ पर जहां पर आपको नंबर जो है वो लेस देन 4 मिला, लेस देन और इक्वल टू 4, बट सक्सेस क्या है, इट इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, राइट? तो पहली वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है. नाउ नेक्स्ट इज
अब आप जरा इस आउटकम को ऑब्जर्व करिए, 2,5, राइट। फर्स्ट टॉस में वी आर गेटिंग 2 विच इज नॉट सक्सेस, सेकेंड आउटकम में वी आर गेटिंग 5 which is greater than 4. So here for this outcome number of successes is 1. Similarly 2,6 के लिए भी 1. मतलब ऐसे भी बहुत सारे outcomes हैं जिसके लिए it is 1. Okay. Now next is, अब आप outcome observe करिए ये 5,5. Not only 5,5 but there are many outcomes for which number of successes will be 2. पहली outcome है 5, second outcome है 5. Both are greater than 4. मतलब number of successes is 2. Okay, so these are the values of random variable in this case. But what we need is, we need probability distribution. इस random variable का probability distribution हमें find out करना है. मतलब for x equal to 0, we need value of p of x, corresponding probability. Okay, so now what we will do is, we will count all those outcomes for which x is equal to 0. x is equal to 0 means number of successes is equal to 0. तो वो सब outcomes जहां पे दोनों भी टाइम जो है नंबर इज लेस देन 4, वैसे सब आउटकम्स हम लोग काउंट करेंगे. सो आप देखिए ये 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, यहाँ पे देर इज नो सक्सेस, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है. सिमिलरली 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, राइट. यहां तक जो है ये सब आउटकम्स जो है, यहां पर देर इज नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू 0. तो ये कितनी आउटकम्स है, अगर आप इसको काउंट करोगे तो दीज आर 16 आउटकम्स. So there are 16 outcomes corresponding to x equal to 0. So probability is 16 upon total number of outcomes, which is 36. So for x equal to 0, p of x is 16 by 36. Now we'll move on for next value of random variable, which is 1. x equal to 1. मतलब number of successes is equal to 1. तो जैसे आप outcome लोगे 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6, देन उसके बाद 5,1, 5,2, 3, 4, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. यहां पर ये वाले आउटकम्स और ये वाले आउटकम, यहां पर इनमें भी देखिए एक सक्सेस है, एक नंबर है विच इज ग्रेटर देन 4. तो ये कितने आउटकम्स है, देखिए यहां पर ये हो गए 8 आउटकम्स, योर ऑल्सो 8 आउटकम्स, 8 + 8 इज 16. तो यहां भी ये हो गया 16 upon 36. नाउ नेक्स्ट फॉर x equal to 2, मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 है. तो ऐसे हैं ये बचे हुए 4 आउटकम्स जहां पे दोनों नंबर ग्रेटर देन 4 है. सो नंबर ऑफ सक्सेसेस इज 2. सो योर प्रोबेबिलिटी इज 4/36. तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज x corresponding probabilities. x is 0, 1, 2. Probabilities 16 upon 36, 16 upon 36, and 4 upon 36. So this is how we find probability distribution for the defined random variable. So now let's see a very important question from board point of view, जो कि HSC board examination में 99.99% या you can say 100% chances है कि ऐसा question पूछते हैं, right? और similar type of question where we need to find value of this unknown. देखिए जो ये probability distribution दिया हुआ है उसमें ये k जो है ये unknown है जिसकी value हमको find out करनी होती है. सो हम सीखेंगे कि हम वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो ये प्रोबेबिलिटीज है ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे,
एंड बच्चों ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम पूछा जाता है सिमिलर क्वेश्चन. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. तो देखिए यहाँ पर जो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, राइट, सिंस गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ये लिखना बहुत जरूरी स्टेप है. तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर है तो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा. पहली तो है कि प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1 एंड सेकेंड इज समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. तो पहली कंडीशन आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं करने वाली है बिकॉज दैट जस्ट गिव्स द रेंज. सेकेंड जो कंडीशन है दैट इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. ये कंडीशन आपको हेल्प करेगी और ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है. इट कैरीज 1 मार्क ना. ये लिखने के बाद वी विल एक्सपांड दिस, इसको एक्सपांड करेंगे. मतलब x की देखो कौन कौन सी वैल्यूज है, 1 2 लाइक दिस टिल 7. तो इसका एक्सपांशन किस तरह से होने वाला है, p of 1 प्लस p of 2 प्लस p of 3 like this we will write till p of 7 and ये जो addition है ये है equal to 1. Now we will substitute the corresponding probabilities. p of 1 2 3 जो भी है उसका substitution होगा. So k plus 2k plus 2k plus 3k plus k square plus 2k square प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1. सो ये सबको हमने ऐड किया. अब हम एडिशन कैसे करते हैं, वी ऐड सिमिलर टर्म्स. तो यहाँ पे सिमिलर टर्म्स क्या है, k 2k 2k 3k एंड दिस k. तो ये कितना हो गया देखिए, 3k प्लस 2 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9k. देन k स्क्वायर वाले जो टर्म्स है दैट इज 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब देखिए बच्चों ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है पहले स्क्वायर वाला टर्म फिर लीनियर टर्म 9k एंड कांस्टेंट को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके आपको पता ही है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय यूजिंग द फॉर्मूला. तो यहाँ पर हम जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बिकॉज दैट इज ईजियर. सो मिडिल टर्म को कैसे हम स्प्लिट करेंगे, दिस इज 10k स्क्वायर, 9k है, दिस विल बी 10k माइनस k इस तरह से. ओके, माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या करना है, हमने कॉमन लेना है फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स. पहले 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो है 10k, तो ब्रैकेट में इट इज k प्लस 1. नेक्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन है माइनस 1, ब्रैकेट में k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 10k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसका मतलब होता है अगर प्रोडक्ट, दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इट मीन्स आइदर फर्स्ट 1 इज 0 और सेकेंड 1 इज 0. तो अगर फर्स्ट 1 इज 0 तो k की वैल्यू मिलेगी हमें 1/10. सेकेंड 1 अगर 0 है तो k की वैल्यू -1. बट दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड. ये हम रिजेक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है. दिस इज द रीजन. अगर हमने k इक्वल टू -1 ले लिया तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी. नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो इस रीजन की वजह से हम इसको रिजेक्ट करेंगे. सो k की वैल्यू हमने क्या लेनी है, k इज इक्वल टू 1/10. सो देखिए इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है. अब नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज p ऑफ x लेस देन 3. मतलब x की वैल्यू 3 से कम. 3 से कम कौन सी वैल्यू है, 2 and 1 के लिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी. तो दिस इज p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2. तो p ऑफ 1 है k, p ऑफ 2 है 2k, एडिशन विल बी 3k. k की वैल्यू इज 1/10.
सो दिस इज 3/10. एंड ऑलवेज ये जो हम आंसर लिखते हैं फाइनली उसको आप हाईलाइट करिए. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन ओनली कन्वर्टेड टू डेसिमल, अदरवाइज उसको फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए. देन थर्ड पार्ट, p ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 3. तो देखिए 0 एंड 3 के बीच में अगर x की वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 0 एंड 3 के बीच में इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, तो यहां पर भी इट इज p of 1 plus p of 2 which is same as above, k plus 2k equal to 3k, मीन्स यहां भी जो है आंसर आपको 3/10 ही मिला है. एंड जो लास्ट पार्ट है फोर्थ वन, p of x ग्रेटर देन 4. देखिए बच्चों बहुत ध्यान रखना होता है, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4. तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 मतलब 5, 6, 7, उसमें 4 इंक्लूडेड नहीं होगा. सो p of 5 plus p of 6 plus p of 7. तो p of 5 है k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k. अब जब हम सिमिलर टर्म्स को ऐड करते हैं दिस विल बी 10k स्क्वायर प्लस k. अब हम k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे विच इज 1/10 होल स्क्वायर प्लस 1/10. अब देखिए यहाँ पे 1/10, ये जो 10 है एक कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी कैंसल्ड, मतलब 1/10 प्लस 1/10 विच इज 2/10 मतलब 1/5. सो 4 sub questions, and if it is asked for 4 marks, 1 mark for each sub question. So ये इस तरह से एक जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर प्रिपेयर कीजिए. नॉट ओनली दिस बट सिमिलर टाइप जहां पर हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज PMF, उसके लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. सो प्लीज प्रिपेयर इट एंड थैंक यू सो मच.